Hello, I am Dr. Abhishek Jaiswal. Welcome to all the students of Mahatma Jyotiba Phule Rohalkar University, especially who have taken their admission in MA English. There are a lot of changes in National Education Policy 2020 in concern or regarding the syllabus. Most of the students are not habitual for semester system, and semester system is completely new to them, and there are queries from different students from different colleges. They are not sure and they are not confirmed about the syllabus that are prescribed in English. So today I will talk about the syllabus and also suggest some books, and will give you idea that how to study and get good marks and become habitual of this semester system. The syllabus is designed according to National Education Policy 2020, and according to the semester system there are 4 semesters, and for each semester there are different types of the subject matter in the syllabus. So unfolding the discussion now, just starting to have a look on the syllabus of first semester, second semester, third semester and fourth semester. Today's discussion is focused on the first semester only. Further we will discuss on second and third and fourth semesters as per your syllabus, as per the time comes. So you see here Department of Higher Education UP Government Lucknow and National Education Policy 2020, common minimum syllabus for all UP state universities. You see here that BA 4th bachelor degree with research in English. Here you need not to focus over, because today's discussion is only for the students of MA. So this one MA first, and this one is in fact for the syllabus of the MA first semester students. You might get confused that there is semester and there is written 7. आपको लगता है कि यहाँ पे semester लिखा है, यहाँ 7 है, तुम्हारा पहला semester कैसा होगा? मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पहला semester होने वाला है, this is in fact for MA first and this is 7th semester. So this 7th semester is for the BA 4th year. So our concern is only for the BA, only for the MA first year, because if people are integrated for the BA for 4 years, then their course will be same for the BA 7th semester, and if you are in MA first semester, then technically this is for you. So starting the discussion, यहाँ पे आप देखते हैं कोर्स कोड लिखा हुआ है, that is the prime importance, that is the things that you need to understand. कोर्स कोड में लिखा गया है इंग्लिश FE 700T, and the first one is functional English to be opted by the students of other departments of the faculty. तो जो आप पहले सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका जो कंसर्न है वो ये नहीं है, बिकॉज अगर आप MA में हैं तो दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज द माइनर वन, और ये किसी और डिपार्टमेंट जैसे इसमें लिखा गया है टू बी ऑप्टेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द अदर डिपार्टमेंट्स एंड फैकल्टी, ये अदर डिपार्टमेंट्स के फैकल्टी के द्वारा ऑप्ट किया जाएगा तो पढ़ाया जाएगा. दिस इज नॉट योर सिलेबस एट ऑल. आपका कितना पेपर होगा MA फर्स्ट सेमेस्टर में? तो आपका होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5. आपके 5 पेपर होंगे जो कंफर्म है MA फर्स्ट सेमेस्टर में न्यू शिक्षा एजुकेशन के तहत. तो आपका जो पहला पेपर है वो इंग्लिश 701T, दूसरा पेपर है इंग्लिश 702T, तीसरा पेपर है इंग्लिश 703T, चौथा पेपर है इंग्लिश 704T, और पांचवा पेपर आपका इंग्लिश ENG 705P. ये थ्योरी का नहीं है,
इसमें आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन और वाइवा का होगा। तो अब आता है कि पेपर फर्स्ट में क्या पढ़ना है, पेपर सेकंड में क्या पढ़ना है, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ में और पेपर फिफ्थ की क्लासेस जो कैसे जाएंगी। टोटल आपको 24 क्रेडिट्स अर्न करने हैं और ये 24 क्रेडिट्स आपके 1 2 3 4 5 से 5 के 5 जो पेपर दिए गए हैं वहीं से मिलेंगे। आप अगर देखें तो आपके क्रेडिट्स या मार्क दिए गए हैं, पहले के लिए 5 है, दूसरे पेपर के लिए 5 क्रेडिट, तीसरे के लिए 5 क्रेडिट, चौथे के लिए 5 क्रेडिट, यानी कि 20 यहाँ से हो गया और 4 क्रेडिट दिए गए हैं आपके पांचवें पेपर से। तो इस तरह से आपके 24 क्रेडिट्स होंगे। कमिंग ऑन द डिस्कशन ऑफ फर्स्ट पेपर, दैट इज पेपर फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 14th सेंचुरी टू द 17th सेंचुरी। जब आप सिलेबस को नेविगेट करेंगे, मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ जिससे आप एक्चुअल मोड में समझ पाए कि हम डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं। ये जितने भी चीजें लिखी हुई हैं अभी आपके मतलब की नहीं है, इसलिए इसको मैं केवल नेविगेट करके दिखा रहा हूं। हमारा जो मेन डिस्कशन शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश लिखा हुआ है और आपको अपना अगर कोर्स कोड याद हो तो आपका जो पहला कोर्स कोड है फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के लिए वो ENG 701T था और पहले पेपर का नाम है इंग्लिश लिटरेचर 14th to 17th सेंचुरी। तो आपको 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी कवर करना है। इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड प्रोज और पोएट्री के सेक्शंस दिए गए हैं और वो प्रेस्क्राइब्ड ये जो आपका लिखा है कोर्स आउटकम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेट मी कवर इट। आपको बता दें ये आपका सिलेबस नहीं है, ये आपको केवल ये बताएगा कि जो आप ये 14 से लेकर के 17वीं सेंचुरी तक पढ़ेंगे, व्हाट विल यू गेट आफ्टर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर दिस सेंचुरी फ्रॉम 14 to 17 सेंचुरी से पढ़ करके आपको क्या मिलेगा। सो दिस इज द कोर्स आउटकम एंड नाउ कमिंग ऑन the pattern that how shall you get marks, you say course credit is 5, paper name is the core compulsory paper है, इसको हटाया नहीं जा सकता and maximum marks is 30 plus 70. You see 30 marks is you will get 30 marks from your practical works, that is assignment, and 30 marks from your exam. You see total number of the lectures, tutorials, practical in hours per week 5 लेक्चर्स आपके होंगे पहले पेपर के। तो ये आपको नंबर मिलेगा, आपका जो एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से 70 नंबर का होगा, 30 नंबर का आपको इंटरनल के थ्रू मिलेगा जो आपके असाइनमेंट और क्लास एग्जाम्स के थ्रू होंगे। अब अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि क्या क्या पढ़ना है, तो आप ये देखिए कि आपके यूनिट फर्स्ट के पहले पेपर में पहले सेमेस्टर में क्या पढ़ना है जो MA इंग्लिश के हैं, वो 17th सेंचुरी, मैंने कहा 14 से 17th सेंचुरी कवर करें, तो 14 से लेकर के 17th सेंचुरी में जितने वर्क इंपॉर्टेंट दिए गए हैं वो इसमें आपको मेंशन किया गया है। पहले प्रोज वर्क है जिसमें आपको टॉमस मूर का पढ़ना हुआ है। टॉमस मूर के यूटोपिया से लिया गया है ऑफ देयर स्लेव एंड देयर मैरिज, ऑफ देयर स्लेव्स एंड देयर मैरिज, यानी कि यूटोपिया आपको पूरा नहीं पढ़ना है। ये समझना बहुत जरूरी है जो सेमेस्टर के हैं, नया है आपके लिए। ऐसा ना हो कि आपके किसी विशेष टेक्स्ट से कोई एक पोर्शन दिया गया हो और आप पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ लें और वो आपका जानकारी तो बढ़ाएगा लेकिन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। तो जितना दिया गया आपको उतना ही पढ़ना है। सो टॉमस मूर के यूटोपिया लिखा है, आपने अगर पढ़ा होगा तो पता होगा, नहीं तो ये उनका एक यूटोपिया एक वर्क है दैट इज वेरी फेमस। एंड उसमें से ऑफ देयर स्लेव्स एंड ऑफ देयर मैरिजेस जो चैप्टर है बस केवल उतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट वी आर कमिंग इन प्रोज सेक्शन, फ्रांसिस बेकन की बात करते हैं। फ्रांसिस बेकन के एसेज कितने दिए गए हैं, ऑफ फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, ऑफ ट्रुथ एंड ऑफ रिवेंज, ये 3 दिए गए हैं। एक और चीज आपको बताना चाहेंगे, जितने में ये स्टार लगा हुआ है, स्टार वो डिटेल्ड स्टडी के लिए है और जिस भी वर्क में स्टार नहीं लगा हुआ होगा वो नॉन डिटेल स्टडी के लिए है। डिटेल स्टडी में क्या करना है, आपको पूरा पढ़ना, इसमें से एक्सप्लेनेशन भी पूछे जा सकते हैं। और जो नॉन डिटेल स्टडी के लिए दिया गया है उसका आपको समरी, उसके कॉन्सेप्ट, उसके थीम को पढ़ना है, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पूछे जाएंगे, उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब पोएट्री के सेक्शन की बात करें जो आपका सेकेंड यूनिट है, आप
आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यूनिट के हिसाब से आपको पढ़ना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप एक यूनिट का पढ़ लें दूसरे यूनिट का ना पढ़ें। कभी कभी आपको जितने भी यूनिट हैं उसमें से कुछ ना कुछ वर्क पढ़ के रहना चाहिए, जिससे सभी से कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं। और जब आपका इंटरनल होगा तो बता दिया जाएगा कि किस यूनिट से आपको कितना कितना पढ़ रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आपको पूरा एग्जाम होगा, व्हेन यू नीड टू स्टडी ऑल द यूनिट्स ऑफ द पर पेपर, तो पहले पेपर का जो दूसरा यूनिट है ये आपका जॉफरी चौसर है। जॉफरी चौसर का क्या दिया गया है, डिटेल स्टडी में है द जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ जॉफरी चौसर। एंड there is history that none the paper in past in previous years have left this particular work of Geoffrey Chaucer। यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट स्टडी इज Geoffrey Chaucer and his work the general prologue to the Canterbury Tales। दूसरा जो आपका वर्क आता है फिलिप सिडनी का है, वो भी डिटेल स्टडी के लिए दिया गया है। माई माउथ डज वाटर एंड माई ब्रेस्ट डू स्वेल। आपका स्ट्रफेल एंड स्टेला सोनेट दिया गया, सोनेट नंबर को 37 दिया गया है। फिर से आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका स्ट्रोफेल एंड स्टेला है वो बहुत, दैट इज द कलेक्शन ऑफ द सोनेट्स एंड यू नीड टू स्टडी ओनली द सोनेट नंबर 37। सेम बात आपकी आती है विलियम शेक्सपियर की। जब बात करते हैं विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट नंबर 18 और 29 दिया गया है, दैट इज ओनली इन योर सिलेबस। ही हैज पेन्ड near about he has penned 154 sonnets, and out of these 54 sonnets there are only 2 sonnets, and that is sonnet number 18 and sonnet number 19. Now Edmund Spenser, the Fairy Queen book first, he has written series of the books in Fairy Queen. There are near about 12 books if I'm not wrong, and you have to read only the book first, and this is for the non-detailed study because there is no star mark. Now coming on poetry section, again John Milton's Paradise Lost is invincible work. In fact, this is something that you cannot ignore, and book first is given for your study in the detailed form. There will be questions and explanations from John Milton's. अब ये पेपर आपका जो यूनिट 3 है उसमें एक और वर्क है जॉन डन का, जो मेटाफिजिकल पोएट है, द कैनोनाइजेशन, गो एंड कैच फॉलिंग स्टार। सो दिस इज फॉर द डिटेल्ड स्टडी, एंड एंड्रू मार्वल्स टू हिज कोइमिस्ट्रेस, दिस इज फॉर द डिटेल्ड स्टडी, एंड बोथ आर मेटाफिजिकल पोएट। नाउ यूनिट 4 इज ड्रामा, एंड ड्रामा में आपको देखें डॉक्टर फॉस्टस इज एज इम्पोर्टेंट एज चॉसर इज इम्पोर्टेंट इन द पोएट्री सेक्शन। तो आप किंग लियर जरूर पढ़ें, शेक्सपियर का है, लेकिन डॉक्टर फॉस्टस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ योर स्टडी। ड्रामा की बात करते हैं, ड्रामा में विलियम शेक्सपियर का, जैसे कि आपने यहाँ पे ड्रामा में देखा हुआ है, किंग लियर है। अब ये डिटेल्ड स्टडी के लिए इससे एक्सप्लेनेशन पूछे जाएंगे। नाउ कमिंग इन यूनिट 5 में ड्रामा है जो कि नॉन डिटेल्ड स्टडी के लिए है, लाइक जॉन वेबस्टर्स द डचेस ऑफ द माल्फी, और इसको पढ़ते हैं द डचेस ऑफ माफी, विलियम कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पेपर। अब फर्स्ट पेपर के नीचे आपने देखा होगा ये क्या लिया है, सजेस्टेड रीडिंग। ये सारी वो किताबें हैं जहाँ से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी मैं इस पर थोड़ा सा बात करूँगा कि ये किताबें ही हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं या कुछ और चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा बहुत मदद करेंगी। I'll discuss separately on this. Now coming on the discussion of paper number 2। अब इसको स्क्रॉल करते हैं, इसमें आप देखिए जो हमने शुरू में बात किया था, प्रोजेक्ट असाइनमेंट 15 नंबर का होगा एंड इंटरनल क्लास टेस्ट आपका 15 नंबर का होगा। इसी कोर्स आपका प्रीक्विजिटीज के बारे में किया गया। तो स्टडी द कोर्स स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ट ऑप्टेड इंग्लिश इन BA 3rd। ये अलग चीज हो गया है, अभी आपके मतलब की चीज नहीं है। नाउ कमिंग ऑन द पेपर नंबर 2, आपको एक बात और देना, टेक्स्ट मार्क विद स्टार आर फॉर डिटेल स्टडी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम धीरे धीरे करके बढ़ते हैं पेपर नंबर 2 पे।
आपको मैंने बोला था कि कोर्स कोड जानना बहुत ज़रूरी है। आपके दूसरा जो पेपर है उसका कोर्स कोड है ENG702T। टी का मतलब यहाँ थ्योरी हो गया, ENG का मतलब इंग्लिश हो गया, 702 उसका कोड है। और वो क्या है, इंग्लिश लिटरेचर 18 to 20th सेंचुरी। आपको अब अभी आपने कहाँ से पढ़ा, इसके पहले कहाँ पढ़ा था, 14 to 17th सेंचुरी। अब आपको उसके आगे 18 to 20th सेंचुरी तक का लिटरेचर पढ़ना है। और ये अगेन उसका कोर्स आउटकम है कि इसको पढ़ने से आपको क्या होगा, और 18 से 20 सेंचुरी में क्या क्या वर्क है जो आपको पढ़ना है, ये आपको टॉपिक और यूनिट में पता चलेगा। जैसे यूनिट फर्स्ट में प्रोज दिया गया है, एंड प्रोज यू सी दैट इन प्रोज देयर इज जॉर्ज एडिशन, और उनका डिटेल्ड स्टडी जैसे स्टार लगा हुआ है, द स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ फ्रॉम कवर्लीज पेपर। कवर्ली पेपर इनका एक जो है वर्क है, एंड वहाँ से जो द स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ, को इतना ही पढ़ना है, पूरा का पूरा नहीं पढ़ना। जैसे शुरू में मैंने बताया आपको चार्ल्स लैम्ब का द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर पढ़ना है। इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस ऑन सेइंग प्लीज आपको एजी गार्डनर का पढ़ना है। मैथ्यू आर्नोल्ड का स्वीटनेस एंड लाइट फ्रॉम कल्चर एनार्की। यू नो कल्चर एनार्की इज वन ऑफ द manifestations of Matthew Arnold's creativity and his real work that established him as a critique। और इनका एक है दूसरा वर्क है द स्टडी ऑफ पोएट्री। तो लेकिन आप मैंने ये डिस्कस इसलिए किया क्योंकि कल्चर एंड अनार्की से केवल और केवल आपको जो कॉन्सेप्ट निकाल के पढ़ना है वो है आपका स्वीटनेस एंड लाइट। एंड स्वीटनेस एंड लाइट इज द बेसिक थिंग्स दैट आर डिस्कस इन कल्चर एंड अनार्की, बट इट इज गिवन इन वेरी शॉर्ट फॉर्म। तो आपको पूरा का पूरा कल्चर एंड अनार्की नहीं पढ़ना है, आपको चैप्टर फर्स्ट में से स्वीटनेस एंड लाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि ये सेमेस्टर सिस्टम है, अभी ये केवल पहले सेमेस्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एंड यू नीड नॉट टू स्टडी अ लॉट, यू हैव टू स्टडी ओनली द सेलेक्टेड थिंग्स that are prescribed in your syllabus. Don't go beyond that. Now coming on the section of the poetry that is given in second unit, paper second के second unit में poetry का section दिया गया है। इसमें आपका अलेक्जेंडर पोप है और डिटेल स्टडी के लिए द रेप ऑफ द लॉक दिया गया है। एंड दिस वर्क इज अनइग्नोरेबल, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं थ्रू आउट योर एमए। जब पूरा का पूरा एमए पढ़ लेंगे, अगर आपने अलेक्जेंडर पोप को पढ़ा और द रेप ऑफ द लॉक नहीं पढ़ा तो उसका मतलब आपने अलेक्जेंडर पोप को कुछ नहीं पढ़ा है। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन गो विथ फॉर योर स्टडी। इसी तरह से दूसरा आता है टिंटर नेवी, विलियम वर्ड्सवर्थ का है, पीवी शेली का ओड टू द वेस्ट विंड, जॉन कीट्स का ओड टू आटम, एंड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ब्रेक 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 क्रॉसिंग द बार। ये दो वर्क जो डिटेल स्टडी के लिए दिए गए हैं। और रॉबर्ट ब्राउनिंग को अगर आप पढ़ना चाहें तो माई लास्ट डचेस इज समथिंग यू विल एंजॉय अलॉट व्हेन यू विल स्टडी। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट unit, that is unit third, and there is poetry section, and I'll tell you, if you want to prepare for the long answer in your second paper, then you can confidently prepare T.S. Eliot's The Wasteland, and W.B. Yeats is also there, is another work, and this The Wasteland is something that defines modernism itself. आपने अगर टी एस एलियट को इग्नोर नहीं करना है, यू हैव टू स्टडी इट टू अंडरस्टैंड इन फैक्ट 20th सेंचुरी। यू हैव टू स्टडी इट टू अंडरस्टैंड द लिटरेचर, द मॉडर्न लिटरेचर। तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, एंड दिस इज वेरी important work that needs you a lot of time to understand. इसमें 26 languages का इस्तेमाल किया गया है, and there are number of the symbols, there are number of the references that you need to understand directly. तो क्लास में आना जरूरी है, अदरवाइज आपको बस पढ़ेंगे समझ में शायद ही आए। I tell you now, next one is W. Yeats, one of the very important transitional poet of the time, and his work sailed into Byzantium and among school children is very important. You can go with for the explanation. And Wilfred Owen, and he's also known as a war poet, and Futility is the important work you can read once. Now W.H. Auden, the Shield of Achilles, और जो Shield of Achilles है ये आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देगा। दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ग्रीक mythology, but you will find the connection
इन इंडियन मैथोलॉजी आल्सो, जैसे जो एकिलियस होता है उसकी एड़ी जो होती है, एंकल होती है, वो सबसे कमज़ोर पार्ट होता है, वहीं से उसकी डेथ होती है। तो अगर आपने महाभारत सुना होगा तो जो आपका महाभारत में एक करेक्टर है आपका दुर्योधन। दुर्योधन बहुत अच्छा गदाधर था और उसके पूरे बॉडी को उसकी माँ वज्र का बना देती है अपने आंखों से देख करके, लेकिन उसका एक पार्ट जो जंघे का पार्ट रहता है वहां पर नहीं देख पाती क्योंकि उस पर वस्त्र रहता है। तो उसका सबसे कमजोर पार्ट होता है, भीम वहीं पे मार करके उसको आ, उस पे विजय प्राप्त करता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये समथिंग, आप अगर द शील्ड ऑफ एक्लियस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यू विल फाइंड सम कनेक्शंस, सम सिमिलरिटीज इन द डिस्कशन। लाइक टेड ह्यूजेस में आप द हॉक रोस्टिंग इज the good one to study to go with. Now coming on the drama, and it is in fourth unit in your paper. James Singe, Riders to the Sea, Samuel Beckett, Waiting for Godot. I'll again tell you your third paper. If you are preparing for the drama and going and reading, then Samuel Beckett is such an important work that you should study. You must study, I say. Now coming on the fiction. In fiction, you will find that Henry Fielding's Tom Jones, that is for the non-detailed study. Emily Dickinson, Emily Bronte, that is Wuthering Heights for the non-detailed study. Joseph Conrad's Heart of Darkness, that is for the non-detailed study. And James Joyce, Portrait of the Artist as a Young Man. This is very important thing. This is also things that you need to give your time for that. Now coming on the next paper, and the next paper is your paper third. I think I have skipped it. Your paper third. What is its code? Yes, that is ENG 703T, and you see the name of the paper is Background to History of English Literature. This paper is something that is very crucial for the students who have opted English literature, because this is the background to the history of English literature. Here you have to study हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना होगा, एंड दैट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज द थिंग्स दैट विल in fact form a foundation for your further studies. जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसको पढ़ने से आपको इंग्लिश का एक थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, एंड दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द लिटरेचर। आप इसको पढ़ के ही इंग्लिश लिटरेचर को समझ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका पहले यूनिट में मिडवल एजेस से पढ़ना शुरू होगा, एजेस ऑफ द चौसर एंड स्कॉटिश Chaucerian, mystery, miracle and morality plays very important for the competition. Renaissance, Reformation, Elizabethan period, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा क्या होता है, यूनिवर्सिटी बिट्स क्या है, मेलोड्रामा क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ द सिनेका क्या है, सिनेका आपका शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, कॉमेडीज, ट्रेजी कॉमेडी, ये कैसे आप समझेंगे, फ्रॉम Jacobean to Neoclassicism, a brief introduction to socio-political background, उसके बाद में authorized version of the Bible, metaphysical school of poetry, Puritan age, neoclassical age, ये सारी चीज़ें जो आपके सेकेंड सेमेस्टर दी गई, रेस्टोरेशन पीरियड, रेस्टोरेशन ट्रेजेडीज, जितनी चीज़ें आपको दी गई हैं ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की किताब में मिलेगा। आई विल सजेस्ट अ बुक, एंड द नेम ऑफ द बुक इज आर.डी. त्रिवेदी की एक किताब है कंपेंडियस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जेलोंग की एक बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर आप उसको ले लेते हैं तो आप ये जो तीसरा पेपर आपका है पूरा का पूरा आपको उसमें मिल जाएगा। ये आपके लाइब्रेरी में भी मिल जाएगा और बहुत महंगा नहीं है। आप हमेशा के लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक आपके पास होनी चाहिए। तो आप 500 रुपये का या 500 रुपये का या 400 रुपये की किताब मिल जा रही है। आर.डी. त्रिवेदी की 500 कुछ रुपये की है और जेलोंग की कुछ सस्ती है उससे। तो यू कैन बाई इट एंड हैव वन rather than to issue from the library.
ये आपका थर्ड यूनिट में आप देखेंगे, आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, आपका रोमांटिक पीरियड पढ़ना है। रोमांटिक पीरियड्स के हाँ एक बात खास है कि इसमें वो टॉपिक दिया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है ना, फ्रॉम एडवर्डियन टू पोस्ट मॉडर्न एज, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड। आप ये जो आप देख रहे हैं ना, इफ यू विल परचेज आरडीटी विद दिस बुक यू विल फाइंड एवरीथिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्निज्म, एडवर्डियन एंड जॉर्ज। जैसा लगता है कि वहीं से सब कुछ निकाल के दे दिया गया। कुछ चीज़ें जैसे किचन सिंक, सिम्बोलिज्म, इमेजिज्म, ये सब 20th सेंचुरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके एमए के सिलेबस में तो हेल्प करेंगे। बाकी अगर आप यूजीसी नेट या पीजीटी टीजीटी का एग्जाम देंगे उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये। सो परचेज अ बुक, जिससे मैं इसमें वो बुक शायद इसमें क्या दिया है, एम एच अब्राहम खां। एक रिक्वेस्ट है कि ये बुक जो दी गई है एम एच अब्राहम की, एम एच अब्राहम बुक इज द इनिशियल बाइबल फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें ये चीज़ आपको बिल्कुल बिल्कुल आपके पास होनी चाहिए, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेपर, दैट इज पेपर नंबर 4 एंड यू सी ENG 704T। पेपर 4 क्या है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। अब जैसे जैसे आप एमए के अलग अलग सेमेस्टर में जाएंगे यू विल फाइंड एंड एक्सप्लोर थिंग्स डिफरेंटली। जैसे अभी आप इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पे आए हैं, आप अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर पे जाएंगे, अफ्रीकन इंग्लिश लिटरेचर पे जाएंगे, अभी उसको डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी आपको मैं बता दूं कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर क्यों दिया गया है, इंडिया में जो इंग्लिश में लिखा गया हुआ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है, एंड इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट बुक्स दैट आर प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। पहला आपका जो यूनिट है उसमें पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट कोलोनियलिज्म एंड देयर इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियननेस इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कैसा है, कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश पोएट्री एंड ड्रामा, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद में कैसा लिखा गया, एंड एक्सपेरिमेंटल पोएट्री एंड थिएटर, दलित वॉइसेस, ये सारी चीज़ें कैसी लिखी गई, नॉन फिक्शनल वर्क दिया गया है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, दीज आर द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड इसके लिए भी किताब है, आई सजेस्ट यू। सेकेंड की बात करते हैं तो नॉन फिक्शनल प्रोज है, और इसमें सी अरबिंदो का इंडियन लिटरेचर एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है, एंड इंडियन लिटरेचर फ्रॉम द रेनेसा इन इंडिया एंड अदर एसेज है। मीनाक्षी मुखर्जी का एक प्रोज है इसी टाइप का, जो कि क्रिटिकल स्टडी आप बोल सकते हैं। नेशनल नोबेल लैंग्वेज फ्रॉम द पेरिशेबल एम्पायर, एसेज ऑन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। जवाहरलाल नेहरू के ऑटोबायोग्राफी है, और उनके ऑटोबायोग्राफी में केवल चैप्टर 44 से 47 और 51 ही पढ़ना है और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। नाउ कमिंग ऑन द डिस्कशन ऑन द नेक्स्ट यूनिट थर्ड में क्या है, पोएट्री है। AK रामानुजन की पोएट्री डिटेल के लिए दी गई है। डिटेल स्टडी में आप लव पोम फॉर अ वाइफ के लिए एक लव पोम लिखा हुआ है वो देखेंगे। R पराशास्त्री का है जो कि इंडियन है, एग्जाइल फ्रॉम होम कमिंग। सरोजनी नायडू का नाम सुना आपने, उसने बुद्धा सिटिंग ऑन लोटस उन्होंने लिखा है। शिव के कुमार का इंडियन वीमन। डॉम मोरेस का वेल्स फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये आपका थर्ड यूनिट था। नाउ कमिंग ऑन द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में फिक्शन दिया गया है, एंड दिस फिक्शन इज फॉर नॉन डिटेल स्टडी लाइक राजा राव का कांतापुरा, शशि देश पांडे का द लॉन्ग साइलेंस, एंड अरुंधति राय हैं उनका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग दिया गया है। दीज आर फॉर द नॉन डिटेल स्टडी। नाउ कमिंग ऑन द यूनिट 5 एंड शॉर्ट स्टोरी इज देयर, लाइक मुल्क राज आनंद की शॉर्ट स्टोरी है। टू लेडी रैम्स, सलमान रुश्दी का है द फ्री रेडियो, एंड अनीता देसाई का है डिवोटेड सन। ये सारे नॉन डिटेल स्टडी के लिए हैं, और जैसा मैंने आपको बताया नॉन डिटेल स्टडी में उसके थीम कॉन्सेप्ट के विषय में आपको ज़्यादा जानना जरूरी है, वहाँ से एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। 6 के लिए है ड्रामा, जो विजय तेंदुलकर का है। ये घासीराम कोतवाल इन्होंने जो लिखा है, मराठी प्ले राइट्स हैं, और इन्होंने ये डिटेल स्टडी के लिए है। ग्रीस कर्नाटका द फायर एंड द रेन, ये नॉन डिटेल स्टडी के लिए है।
अब ये चीज़ें जो डिस्कस की गई, आप इसमें सजेस्टेड रीडिंग कहाँ से चीज़ें पढ़ सकते हैं, इसमें ये ऑथर का नाम और किताबें दी गई हैं, आपको कंफ्यूज करेंगी अगर आप इन ऑथर के नाम और किताबों पे जाएंगे। नाउ let me tell you for the last paper that what shall be done in the last paper। जो 100 नंबर का होगा लास्ट पेपर, और उस 100 नंबर के पेपर का जो कोड है, ये पेपर कोड आप देखें, इंग्लिश 705P पेपर का नाम है 5वां, और ये पीपीटी प्रेजेंटेशन एंड वाइवा उसी, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा पीपीटी प्रेजेंटेशन कैसा होता है, वाइवा इसका लिया जाएगा लास्ट में 5वें पेपर में, जो आपको 100 नंबर के हैं। अब इतना सब कुछ डिस्कशन करने के बाद में आपके पास जरूर क्वेश्चन होगा, सर हमें कहाँ से पढ़ें सारी की सारी चीज़ें। तो लेट मी टेल यू दैट फॉर ऑल द पेपर्स देयर इज सजेस्टेड रीडिंग। उसमें सजेस्टेड रीडिंग तो दिया गया है, उसके साथ में आप उस सजेस्टेड रीडिंग से, जैसे कि मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेपर फर्स्ट, जैसे कि ये 701 का पेपर है, इसमें जो सजेस्टेड रीडिंग दी गई है, क्या यहाँ से आपको चीज़ें मिलेंगी और ये चीज़ें क्या मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके साथ में आपको क्वेश्चन आता है कि बिल्कुल नया है ये, तो उसमें आप कहाँ से पढ़ेंगे। उसके लिए आपको मैं राय दूंगा कि सबसे पहला काम तो आप करिए कि जितने भी वर्क्स ये दिए गए हैं, जो पुराने किताब उपलब्ध हैं मार्केट में, दिल्ली में या आपके शहर में, वहाँ से आप देखिए कि ये जो ऑथर है उनका ये वर्क दिया गया है या नहीं दिया गया है। अगर ये नहीं दिया गया है तो बेटर इस आप पर पेपर से एक डायरी बनाएं, इसको या तो आप निकाल लें, उससे इंटरनेट पे आप स्पार्क नोट से, क्लिफ नोट से, विकिपीडिया से, britannica.com से, लिट चैट से, स्लाइड शेयर से, ये सारे कुछ मैंने नाम जो लिए हैं साइट्स हैं, वहाँ से इनके वर्क्स निकालें, इन पे नोट्स निकालें, या आप एक हर एक पेपर का एक स्पाइरल बाइंडिंग बनाएं कि हाँ ये चीज़ें आपके पास में हैं, अगर आपको अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप पहले ऐसे हैं जो आपको ये सारी चीज़ें अचानक से पढ़ने को सेमेस्टर में मिली हैं, और आप मानिए कि केवल पहले सेमेस्टर की हैं, सेकेंड सेमेस्टर के भी बाद में है, जो इतना ही लंबा होगा, तो आपके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आप एक एक करके इसको पीडीएफ बना करके निकाल के वर्ड में करके इसका स्पाइरल बाइंडिंग बना लें और उससे पढ़ाई करें। दूसरा सबसे सरल ये है कि आप क्लास में आएँ, क्लास में जो भी चीज़ पढ़ाई जाएगी उन सारी चीज़ों का मटेरियल और नोट्स आपको दिया जाएगा, वो आप वहाँ से फोटोकॉपी करवा सकते हैं, आपको लिंक बता दिया जाएगा, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी सिंसियर एंड यू नीड टू बी very regular in your classes, rather than if you want to pursue your self study too, then you can follow the suggestions that I asked for। कुछ साइट्स में है उससे आप काम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ऑफलाइन क्लासेज होती हैं तो ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड करिए, और ऑनलाइन क्लासेज होती हैं तो उसको अटेंड करिए, एंड यू कैन ड्रॉप योर मैसेजेस ऑन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स फॉर फर्दर क्वेरीज। थैंक यू।